Dear parents, we welcome you today in this online session, the parent orientation for session 26-27. And this is our first initiative to go online live for orienting the parents about the academic policy. This initiative has been taken by the school to address the concerns and problems of some of the parents who are in government job, who are working at far off place, who cannot join PTM when they are required in the school. To overcome this challenge of the parents, this initiative is taken by the school to go online and to address all the problems, to solve all the problems of our dear parents. This is specifically designed for middle stage school students, and middle stage means grade 6, 7, and 8. This orientation program will tell you a lot about the academic policy, the various new initiatives of CBSE, about new NCRT books, the approach of NCRT books, and before going further, I would like to invite the coordinator, first of all, the head coordinator of K to 8, Mrs. Nishu Marwa, who is a senior teacher of the school, and she has worked in the school for 9 years. She's working here for 9 years. In past 9 years, she has dedicated her 9 years in the school. And her journey as a teacher to head coordinator is seen in her personality, in his learning journey. She has a new partner in her team. I would like to invite Mrs. Shikha Sharma, who is Meet Shikha Sharma. She is a new team member, not in the school, but in this profile. She is a new member. Though she's a senior teacher, but she accepted that, ma'am, I would like to choose 6 to 8 because last year she has presented a case paper in STEM DLD and she worked with grade 8 students. She's innovative, she's creative, and she is mathematics TGT. She's already teaching grade 11 also, applied mathematics. Thank you, Nishu, and thank you, Shikha. This PPT is prepared by Shikha Sharma, and this is collaborative effort of all the coordinators, teachers, subject teachers, and academic head coordinator, Deepak Marwa. So this is a consolidated effort which I will explain to you this in this online session. Every school has its own vision to fulfill all the requirements of its students. And the school vision of Bright Start is aligning with NEP 2020, National Education Policy 2020. So the BSIA, that is Bright Start International Academy, wishes to instill among the students a deep-rooted pride in being Indian, not only in thought, but also in spirit, intellect, and deeds, as well as to develop knowledge, skills, values, and dispositions that support responsible commitment to human uh, duties, rights, sustainable development and living, and global well being, thereby reflecting a truly global citizen. So, we want our children to become global citizens who are responsible, sensible, and sensitive to the needs of others too. To complete, to fulfill this vision, we have to break down into small parts that is called mission. In this mission, we have a very big team of teachers, of those teachers who are teaching grade 6, 7, and 8. They are expert in their subjects, they are empathetic, they are careful, and they are dedicated. So the vision is to facilitate learners. Now, the teachers in this age category are no more teachers, they are facilitators. Why the term teacher to facilitator is used here? Because they are providing facility
to the learners to reflect on their own learning and to learn on their own. They are very, very flexible. They are using multidisciplinary approach for the holistic education, ensuring identification of each learner and fostering the unique capabilities of each learner. And we seek to develop amongst our students knowledge, skills, values, and attitudes that promote responsible commitment to human rights, sustainable living, and global well being. If this much is required, you can well imagine how much input is required. So that effort is made by the school Bright Start International Academy each single day, 24 by 7. If it is the case of students' well-being, Bright Start is a leading school, and it leads by setting examples, milestones for others in the vicinity. As a good school, it caters to the needs of the children, be it academic need or performing arts need or for sports needs. Our students are participating in all the competitions. Recently, from grade 8, one of our students, Rhythmpreet Kaur, who was selected in Manak Inspire Award and who received 10,000 rupees amount of prize money, who presented her prototype at block level, then district level, and then presented at state level, has now been selected and is now preparing to represent Bright Start at national level. There are only 1,000 students selected across India, out of which Bright Start is also there because of Rhythmpreet Kaur. Heartiest congratulations to Rhythmpreet Kaur and the family. And we believe in our children. We trust our parents. We have full faith in the commitment of our teachers that many more students will come up in coming time. In recent past, we had hosted CBSE cricket zone competition where under 14, under 17, and under 19, a huge crowd was here in the school, and proudly we announce that our student Yashveer Kamboj was felicitated by another big award, that is star performer. He was the star performer in under 14 category, while we were winners in at national level in under 19 category, and we were first runner up in under 17 category. These are few achievements, but before that, last year we hosted CBSE swimming competition, North Zone 1. Before that, we had hosted girls football, CBSE girls football, North Zone 1. So Bright Start is a leading school. Last year we had conducted from 6 to 8 grade, this grade specifically, a district level deliberation when teachers presented their case papers. There were 13 schools who presented their case papers. And from this category only, teachers have registered themselves with CBSE to become CBSE resource persons. They are getting not only trainings, but they're tuning themselves to become good resource persons as well. Under their capacity, they are improving each single day. Now, moving further, grade 6 to 8, now we have new NCERT books with us. Some of them were there last year available, and now it has become mandatory to implement all those books. Mandatory skill education through Kaushal Bodh, practical application in mathematics, joyful discovery based and experiential learning, focus on skills over rote memorization, inquiry based learning in science and social science, communication storytelling in languages, project based and interdisciplinary activities, integration of CT and AI, coding and digital learning, formative and competency based assessment, and
inclusion of Indian Knowledge System IKS. These are the approaches to transact the curriculum of 6, 7, 8 in middle way. Grade 6 bridge program for smooth transition has also been created. When such are the changes, when new NCRT books are mandatory to be implemented, our teachers have prepared NCRT content. In last 2 months, they have prepared it twice. उन्होंने 2 बार एनसीईआरटी किताबें पढ़कर उसको उसकी अप्रोच को समझा है, उसको आत्मसात करने का प्रयास किया है। कुछ ही समय पहले CTNAI की अनाउंसमेंट हुई कि इस वर्ष CTNAI को भी इम्प्लीमेंट करना है और वो 6 to 8 में ही नहीं, क्लास 3, 4, 5 में भी करना है। All the teachers are well prepared, and lucky we think we are, that all the teachers are into learning process. खेल यात्रा सिर्फ खेल की यात्रा नहीं है, शारीरिक स्वास्थ्य की यात्रा है, ये आत्मिक विकास की यात्रा है, ये स्वस्थ शरीर की यात्रा है। ये सैद्धांतिक रूप से बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि इसके पीछे क्या सिद्धांत है। खेल योग से शुरू करके 3, 4, 5 के बच्चे बड़े होंगे तो उन्हें यात्रा का मतलब समझ में आएगा कि इस यात्रा को किस तरह से हेल्दी तरीके से जीना है। और थ्योरी पढ़कर, जो अभी सिर्फ खेलते थे बच्चे, और ये बड़े बच्चे जाके जो फिजिकल एजुकेशन में जाके सिलेबस पढ़ते थे, वो नहीं है। तो पढ़ाई को अगर बोझ समझेंगे तो स्वास्थ्य को भी बोझ ही लगेगा। लेकिन अगर उसको सही तरीके से समझकर बच्चे उसको अपने आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, और ये ज़रूरत थी, तो इस ज़रूरत को हम सहर्ष स्वीकार करके इम्प्लीमेंट करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ स्किल बेस्ड जो है वो कौशल बोध है। स्किल इज समथिंग कि आपने जो किताब पढ़ी, जरूरी नहीं है कि आप स्किल्ड हो जाएं, मैं स्किल्ड हो जाऊं, जब तक कि हम उसको अपने डेली व्यवहार में ना लाएं। नॉलेज से स्किल में कन्वर्ट करने के लिए हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल चाहिए। क्योंकि मैं यहाँ बैठी हूँ, अभी ऑफिस से इसको ऑनलाइन लाइव कर रही हूँ, अदरवाइज कल आप आने वाले हैं, कल आप देख सकते हैं कि कौशल बोध के लिए आपके बच्चों ने क्या क्या प्रयास किए। From growing microgreens to harvesting and to consuming, knowing the nutritious value of the microgreens. If it becomes a habit of the children, then don't you think this is a good practice? अपने ही कौशल का बोध होना अपने हाथ से ही करने पर होगा। तो हाथ की एक्टिविटी जितनी भी हैं, जो स्किल्स हैं, वो कौशल बोध देने वाला है, जो कि असेसमेंट भी ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं। कुछ किताबों के नाम आपको पता ही होंगे। मैथमेटिक्स का नाम अब मैथमेटिक्स नहीं है, गणित प्रकाश। Science is curiosity. Social science is exploring society, India, and beyond. Hindi is Malhar. Sanskrit is Deepakam. English is Purvi. Vocational education is Kaushal Bodh. Computational thinking and artificial intelligence. Physical education and well-being is Khel Yatra. Art education is Kriti. एक नई चीज जो आई है, हम तो एक्चुअली पहले से ही कर रहे हैं, कुछ स्कूल शायद नहीं कर रहे थे, पर अब इनको ने मैंडेटरी कर दिया है। दिस ईयर दिस बैच ऑफ ग्रेड 6 26-27 इज द फर्स्ट बैच जिसको संस्कृत को वाकई ही बहुत सीरियसली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 2030-31 में इन बच्चों को बोर्ड की परीक्षा देनी है। अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि हमें संस्कृत पसंद नहीं है तो हम संस्कृत छोड़ देंगे। हमारे स्कूल में संस्कृत है, और इसमें इसका रीजन ये है कि 2 लैंग्वेजेस आपको इंडियन लैंग्वेजेस लेनी है। तो रीजनल लैंग्वेजेस कुमाऊं और गढ़वाली अभी नहीं बनी है, उसका करिकुलम नहीं बना है। इस बार भी करिकुलम में 4 लैंग्वेजेस ऐड की गई हैं, जो हमारे इस एरिया में नहीं बोली जाती हैं, और हमारे पास टीचर्स भी नहीं हैं, और फिर बच्चे भी बहुत कम लेंगे। इसलिए 6, 7, 8 में हम संस्कृत के साथ जाते हैं। फिर अगले जब ये 8 पे आएंगे बच्चे 6 वाले, देन ऑफ कोर्स बाय देन एवरीबडी विल बी जितने भी संस्कृत वाले टीचर्स हैं वो सब के सब अपने आप को अपडेट कर चुके होंगे। तो अभी 2 लैंग्वेजेस, 3 लैंग्वेजेस में से 2 लैंग्वेजेस हिंदी और संस्कृत हम चूज कर रहे हैं। इंग्लिश इज आर नेक्स्ट लैंग्वेज। तो इस तरह से हमारे पास 3 लैंग्वेजेस हैं। कौशल बोध मैंने आपको बताया कि जो फोकस करेंगे हम उसमें 3 फॉर्म्स हैं उसकी फोकस करने के लिए। फर्स्ट लाइक इज चिल्ड्रन विल बी वर्किंग ऑन लाइफ फॉर्म्स,
लाइफ फॉर्म्स में गार्डनिंग करेंगे, प्लांट्स ग्रो करेंगे एंड बायोडाइवर्सिटी के बारे में स्टडी करेंगे. Second area is machines and materials. Here they will do some crafting. They will be doing some work with using tools, some coding work, and use of AI. Third area of focus is human services. In human services, they will be going for some community work. They will be working on health, and they will be working on nutrition. So the objective of Kaushal Bodh or skill education is to promote experiential and project-based learning, to develop practical skills and to respect for labor. आजकल हमारे माली भैया सोनू, वो सब के सब सोनू भैया उनके टीचर हैं. सोनू भैया से वो पढ़ रहे हैं, यानी कि माली भैया के साथ आजकल बच्चे पूरे लग के काम कर रहे हैं, उनसे पूरी बात करते हैं, भैया ये कैसे काम होता है, उनको फ्रीडम मिली है, हैंड्स ऑन कर रहे हैं, दे आर हैप्पी. तो स्कूल इज अ प्लेस वेयर दे शुड फील हैप्पी. सबके घर में खेत नहीं है, सबके घर में इतनी जगह नहीं है कि बच्चे पौधे लगा सकें. बंदर आ जाते हैं तो उनके प्लांट्स तोड़ देते हैं. बट अमित सर इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द प्लांट, ताकि उनके बच्चों को वो खराब ना हो, उनके पौधे खराब ना हो, नहीं तो बच्चों को दुख होता है. तो स्कूल इज इन्वेस्टिंग हेविली ऑन एवरी सिंगल थिंग. अभी उन्होंने लैब के लिए प्रॉमिस कर दिया है. इस बार आपने देखा हमने एस्ट्रो पाठशाला, क्योंकि लास्ट ईयर की थीम्स थी स्टेम एजुकेशन, integration of science, technology, engineering, and mathematics in school. So last year we had presented our case paper. उसको कंटिन्यूली लेकर चलना है. तो हमने एस्ट्रोनॉमी चूज किया, साइंस भी आ गया, मैथमेटिक्स भी आ गया, हैंड्स ऑन भी आ गया. आजकल बच्चे अपने रॉकेटरी पे काम कर रहे हैं, रॉकेट्स बना रहे हैं. जो प्लास्टिक की वेस्ट बॉटल्स हैं उससे बच्चे रॉकेट्स बना रहे हैं. सो नाउ दे आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, हाउ द रॉकेट्स इज गोइंग इन द एयर ऑन rising high above, what is pressure, how it is happening. So now they are not into read and write sort of thing, but they are into practical, and they are enjoying it thoroughly. And I appreciate all the parents की जिन्होंने इस चीज को बहुत अच्छे से मतलब अप्रिशिएट किया सर की इस एफर्ट को, कि आपने इतना इन्वेस्टमेंट एस्ट्रो पाठशाला लैब में किया है. और उसके लिए अब बच्चे बहुत, मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा स्कूल मिस करना चाहेगा कि आज मेरा कौशल बोध का लेसन है, आज मेरा एस्ट्रो पाठशाला का लेसन है. तो अब उनके साथ में वो चीजें जुड़ी हैं जिसकी उनको हैंड्स ऑन करने का मौका मिलता है. And by the time they will pass grade 6, they will be good at spoken English also. The reason is they're getting chance to get involved directly, rather than question answer and question answer. They are doing it, they're participative, and that's why I feel they are very happy. मुझे लगता है कि एक ही तरीका है बच्चों से बात करें. आप जब बच्चे घर लौट कर आते हैं तो उनसे ये पूछने के बजाय आज क्या क्या हुआ, आप ये पूछिए कैसे कैसे किया. दिस इज द ब्यूटी ऑफ रिलेशनशिप. सारे पेरेंट्स पूछते हैं, अच्छा तो आज क्या क्या किया, ओके, अच्छा उसने आपको ऐसे बोल दिया था, उसने बोल दिया था. वो बोले कि पढ़ाई के बारे में आप पूछिए उनसे कि आज आपने इस काम को, पढ़ाई को कैसे कैसे किया, रॉकेट्स बनाए थे. सो व्हाट दे विल डू, दे विल टेल यू द प्रोसेस. अगर उन्होंने प्रोसेस एक्सप्लेन करना सीख लिया, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मेरे बच्चे को प्रोसेस बोलना आ गया या नहीं आ गया. तो क्या हम घर में बच्चों को उन बातों के लिए बोलते हैं जो उनके काम की बातें होती हैं, या फिर हम लड़ाई भिड़ाई सारी उन्हीं चीजों की बातें करते हैं. तो आई थिंक द रोल ऑफ अ मदर and father and parents and in fact grandparents is really crucial at this time, because the children are not into uh, everything. but हाँ, अगर हम उसको प्रोसेस में डाल देते हैं कि आप इसको प्रोसेस को फॉलो करना है, तो उनको फिर याद करके रट के और लिखने की और भूल जाने की जितनी भी डर हैं वो सारे निकल जाएंगे. सो आप ये मत सोचिएगा कि कौशल बोध को असेस नहीं किया जाएगा, उसका भी एग्जामिनेशन होगा. अभी 9th में भी कौशल विकास लगने वाला है और उनका बोर्ड का एग्जाम होगा. तो डेफिनेटली आपके बच्चों का भी ये कौशल बोध का एग्जाम होगा. तो जस्ट डोंट टेक इट लाइटली कि आपके बच्चे ये क्या करा रहा है स्कूल और ये क्यों करा रहा है. तो आप क्यों करा रहा है पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कैसे हो रहा है ये आप उनसे पूछिए कि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ रहा है, आपको घर पे किस चीज़ की ज़रूरत है. डू यू वांट टू डू समथिंग सच टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड डू यू वांट अस टू बी अ पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट. तो मुझे लगता है दैट इज़ गोइंग टू बी रियली फ्रूटफुल फॉर यू, फॉर योर चाइल्ड. पेडागोजी क्या रहेगी, हैंड्स ऑन. सब बच्चों को मिट्टी में हाथ डाल के सब चीज़ें करके देखनी पड़ेंगी.
इनफैक्ट चिल्ड्रन वर व्हेन टाइंग दोस ग्रीन नेट और उसके ऊपर वो तार से उसको बांध रहे थे, दे वर सो एक्साइटेड एंड दे वर सो हैप्पी कि ये पहली बार ऐसा हुआ है और हम अपने प्रोजेक्ट को बहुत सुंदर बनाने वाले हैं। दिस इज द मोटिवेशन। अभी उनको जुनून है इस चीज का कि कॉपी किताब से और मार्क्स से तो हम घबराए घूमते थे, लेकिन उस प्रोसेस को वो ऐसे समझ लेंगे। सेम चीज है कि आप लोगों को सारी चीजें बच्चों को रटवानी नहीं होती हैं, लेकिन अगर आप वो अपने आप चीजें करने शुरू कर देते हैं, तो फिर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर बच्चों को रटने का बिल्कुल डर नहीं होता है, कभी डर नहीं होता है, क्योंकि एक बार जो चीज समझ में आ गई, वो चीजें हमेशा के लिए याद रहेंगी। जो आपको अगर स्वेटर बुनना आ गया तो आप कभी भूलोगे नहीं। आपको आटा मलना आ गया तो अभी आटा भूल बनाना भूलते थोड़ी है कभी। हाँ ठीक है, कभी पतला हो जाता है, कभी हार्ड हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप भूल जाते हैं। सिमिलरली पढ़ाई ना भूले बच्चा कभी, उसके लिए क्या प्रयास करने हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। लेकिन बच्चों को इतनी एंग्जाइटी है कि मैं एग्जाम दे ही नहीं सकता क्योंकि मुझे घबराहट हो रही है। तो फिर वो घबराहट किस वजह से है? इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट मिसिंग है। अगर वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत बचपन से सही हो जाए, तब बच्चों को किसी चीज का डर नहीं, और पेरेंट्स को बिल्कुल प्रेशर नहीं डालना चाहिए। मुझे तो अपने क्लास 3 के मार्क्स बिल्कुल याद नहीं है। मेरे फर्स्ट टेस्ट में हिंदी में कितने मार्क्स आए थे, इनफैक्ट मुझे तो परसेंटेज भी याद नहीं है। जो याद है वो ये कि अभी मुझे और पढ़ना है, मुझे अभी और पढ़ना है। जितना पढ़ा था वो तो मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ, लेकिन आज जो आ रहा है, आप लोगों ने जितना पढ़ा एज अ पेरेंट, दैट वाज द टाइम व्हेन यू स्टडीड इट दैट टाइम। नाउ you will not be able to understand what is happening around, and if you are not into studies, पढ़ लो आप अपने बच्चों के साथ बैठ के, लेकिन उनको प्रेशराइज मत करिए कि उसके नंबर उससे ज्यादा। देयर शुड नॉट बी कंपैरिजन, नो कंपैरिजन एट ऑल। आपका बच्चा अपने आप में एक ब्यूटीफुल सोल है, अपने आप में डिफरेंट है, तो व्हाई टू डू द कंपैरिजन? और उनको फ्रेंड्स भी चाहिए होते हैं, बट नाउ यू हैव टू टेक केयर what type of friends they are keeping, what type of talks they are doing, what type how many times they are engaged in socializing or social media. Are they using digital devices without your permission? Are you searching, are you peeping into the devices at some time and keeping a watchful eye on them? If not, that means you are not a vigilant parent. So digitally safe रखने के लिए बच्चों को आपको देखना पड़ेगा। इसमें मार्क्स भी मिलेंगे बच्चों को, कौशल बोध में मार्क्स भी मिलेंगे। कौशल बोध टीचर विल टेल यू व्हेन यू कम टू स्कूल। नाउ another shift is CT and AI. Everybody is talking about CT and how will you do this, how are you doing this. In fact, in the felicitation ceremony when I was there in Haridwar DPS to receive my award, then the director of CBSE training unit, Mr. Manoj Srivastava, also asked when in his address कि कितने लोगों को अभी भी CT and AI अपने स्कूल में कक्षा 3 में लगाने में कोई संशय है। हमें कोई संशय नहीं था। आई वॉज रेडी कंप्लीटली। आई हैड नो क्वेश्चन टू आस्क, बिकॉज हम पढ़ते हैं, हम समझते हैं, हमारी पूरी टीम एक साथ बैठ कर डिस्कस करती है, हम स्कूल के बाद भी रुकते हैं और सब मिलके साथ में बैठ के पढ़ते हैं। और उसको पढ़ना हमें अपने लिए नहीं पढ़ना होता, हम बच्चों के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि आप नहीं पढ़ सकते, हमारा काम पढ़ने का है, तो हम पढ़ेंगे डेफिनेटली। लेकिन फिर आप और हमारा हमारा सामंजस्य ऐसा होना चाहिए कि कोई चीज़ अगर हम गलत कर रहे हैं तो आप हमें बताइए, बट अ प्रोसेस इज रिक्वायर्ड। फिलहाल कंप्यूटेशनल थिंकिंग में हम ऐसी क्या चीज़ है जिसको हम डिफिकल्ट मान लें? देयर इज नो डिफिकल्टी। In fact, as a biology person, I was a little skeptical about it, whether I'll be able to understand this thing or not. Only the IT people will be able to. But when I said, give me the curriculum, I will read it. And I will not trust anybody. And when I went through it, I said, it's so simple. In fact, I was telling mathematics teacher, come on, I'll tell you how it is to be done. Then सारा चैप्टर पढ़ के आई थी, सब कुछ पढ़ के आई थी, फिर बताया और क्लास भी ऑब्जर्व कर डाली। राजा की 3 बेटियां थी, उनके पास उसने तीन तीन टोकरियां दी, उसमें उसमें 3 चाबी थी। अरे दैट वाज सो इंटरेस्टिंग, आई फाउंड इट रियली इंटरेस्टिंग। एंड नाउ देयर इज नो पेन पेपर, देयर इज नो बोर्ड, नो शैबी, नो शोइंग ऑफ कि हाई इसके तो नंबर ज्यादा आ गए, ऐसा कुछ भी नहीं था। और मतलब मुझे लगा कि कितना इजी हो गया ना बच्चों के लिए। एंड टीचर वाज आस्किंग क्वेश्चंस, चिल्ड्रन वर रिलेटिंग, एंजॉयिंग द एक्टिविटी एंड गिविंग द आंसर्स। व्हाट फॉर? टू आइडेंटिफाई द पैटर्न देखना उसमें। तो यहाँ कॉग्निशन इज ब्रेन। द रीजन ऑफ दिस करिकुलम ऑफ CT and I is
development of cognitive capacities, integration of knowledge across the curriculum, readiness for an AI driven world, promoting core competencies and ethical awareness. यूजिंग सम लर्निंग आउटकम्स क्या आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होगी बच्चों की, पैटर्न रिकॉग्निशन आएगी, डीकॉम्पोजिशन मतलब बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करना। मतलब अभी बच्चे को ये नहीं आ रहा कि मैं गलत डिसीजन ले रहा हूँ, किसी के लिए भी कुछ भी ऐसे ही रैंडमली बोल दे रहा हूँ, या मैं देख के सोच के उसको छोटे छोटे टुकड़ों में वहां स्टार्टिंग डॉट पे पहुंचता हूँ कि ये चीज कैसे कैसे चलती है, तब मैं उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता हूँ। दिस इज द एम ऑफ सीटीए एंड एआई कि बच्चे प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाए। अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उसे खुद ही सॉल्व करना सीख जाए, तो डिकम्पोजिशन करके पास हो पाती है। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम लेकर आते हैं तो हमें भी समय चाहिए होता है टू कलेक्ट द डेटा। भी हम इंक्वायर करते हैं कौन किस किस चीज पे कहाँ पर हुई हैं चीजें, उसको पता करते हैं। बट इफ यू आर ऑलरेडी इन टू अ रश, यू आर विलिंग टू गेट द सोल्यूशन राइट देयर एंड देन ओनली, आई एम सॉरी, उसमें तो एक्सीडेंट्स ही होते हैं और चोट सबको लगती है। तो एल्गोरिथमिक थिंकिंग डेवलप करिए साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल अप्रोच के साथ, देन कंप्यूटर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, डेटा एंड डोमेन लिटरेसी, एआई प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, ethics and digital responsibility, innovation and problem solving। मुझे लगता है इस केस में जो बच्चे थोड़े से पीछे छूटे हुए हैं वो बहुत तेजी से आगे निकल के आएंगे। और मैं सभी पेरेंट्स को बोलना चाहती हूँ कि ये टाइम है, अगर आपने सिर्फ मार्क्स की होड़ नहीं करी और अपने बच्चों को मॉरली सपोर्ट करके थोड़ा प्रेशर हटा के उसको बोला बेटा सीटी एंड एआई देखो, उनके बच्चे बनेंगे विजेता। उनके बच्चे समझ जाएंगे कि अरे हमारे मम्मी पापा वो नहीं रहे, क्योंकि आप चलने ही नहीं वाले उनके साथ बहुत लंबे टाइम तक। द रीजन इज ये इतना तेजी से सब कुछ बदल रहा है कि आपके कंट्रोल में नहीं वो चीज। लेकिन अगर आज बच्चे पीछे रह गए तो फिर बहुत दिक्कत आएगी। यहाँ पर जिस भी तरीके का ऑब्जर्वेशन वो करेंगे, असेसमेंट करेंगे, दैट वी विल टेल यू। बल्कि सीटीए एंड आई वाले मैथमेटिक्स में इंटीग्रेटेड है, मैथ्स टीचर्स उसको टेकिंग केयर ऑफ दैट। जो एआई वाला पार्ट है दैट विल बी टेकन केयर बाय आर आईटी टीचर्स, दे नो इट हाउ इट इज टू बी डन। सो अब दूसरी किताब आती है खेल यात्रा। क्लास 3 4 5 के बच्चे ने खेल योगा से पढ़ाई करी। वहां उन्होंने योग के सही को जितने भी तरीके जो भी योगाभ्यास हैं उनको सीखा, उनका सही तरीके से उनको ज्ञान मिला, उसको तरीका मिला हाउ टू डू दिस योगासन, what is the posture, how we have to sit, with what posture we have to sit, and why to sit in this way, what all are the benefits, and if I do it in a different way, what all will be the wrong consequences. So, getting the right information, which is actually converting into knowledge. And if you are practicing the yoga abhyas in a very right way, that has become that becomes a skill. आपने देखा होगा कितने सारे योगा योगा क्लासेस जो चलती हैं, योग क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन सेशंस लेते हैं एंड दे आर अर्निंग अ लॉट। यूएसए से भी लोग अटेंड कर रहे होते हैं इंडिया में। तो अगर आपका बच्चा उसको ठीक से करता है और उसको थियोरी के साथ करता है तो उसमें आपको कुछ फॉल्टी लगता है क्या? आई डोंट थिंक सो। आई अप्रिशिएट कि किताबें आई हैं, हम पहले भी उसको पढ़ाते थे। खेल की पढ़ाई, योगाभ्यास की पढ़ाई, जो भी चीजें हैं वो पढ़कर अगर करें तो हम बोलते हैं कि हम एजुकेटेड हैं, हम एजुकेटेड हैं। और आपको सिर्फ खेलना आता था, डांस करना आता था, म्यूजिक करना आता था, लेकिन एक्चुअली उसका वो जो लिटरेचर है वो नहीं आता था। इसलिए कहीं लगता है कि बहुत लिमिटेड स्कोप हो गया, क्या कर लें, बस जेई कर लें, इंजीनियर बन जाए या फिर डॉक्टर बन जाए, फिर या फिर सीए बन जाए या फिर लॉयर बन जाए। उसके आगे कोई सोच ही नहीं पाता था, पांचवी कोई चीज नहीं होती थी। बहुत जाके पीछे होटल मैनेजमेंट आया। अभी और क्या होता है, इससे आगे कोई सोचता ही नहीं है। हिस्ट्री में कर लें या फिर सिविल सर्विसेज होती थी। पर अब आप देखिए खेल यात्रा के साथ में आपके पास बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं। एक नई किताब नहीं है, मेरे लिए नई किताब नहीं है, लास्ट ईयर लगाई थी, यूज नहीं हो पाई थी क्योंकि हमारे यहाँ छुट्टियां बहुत होने लगी हैं और वो हम नहीं कर रहे हैं, हमें मजबूरी में वो सब फॉलो करना पड़ता है। पर घर पे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, आई अंडरस्टैंड। ऑनलाइन में भी कोई नहीं आता, टीचर्स बैठते हैं पूरे दिन, स्कूल आके करते थे, कोई होता नहीं था फायदा उस चीज का। तो फिर आई डोंट नो इफ द चिल्ड्रन आर एट होम व्हाई दे आर नॉट कमिंग इन द क्लास, माइट बी सम प्रॉब्लम्स। तो कृति 4 चीजें पढ़नी है बच्चों को। लास्ट ईयर तक इनफैक्ट अभी भी वही होना था, हमने बच्चों को अलाउ कर रखा था दे कैन चूज एनी वन हॉबी क्लब एज पर द लाइकिंग।
एज पर देयर हैप्पीनेस, कि आप कोई भी एक क्लब ले लीजिए, चाहे आप डांस लीजिए, म्यूजिक ले लीजिए या फिर पेंटिंग ले लीजिए, और अगर आपको ये पसंद नहीं है तो फिर आप क्या करना चाहते हैं, ये भी पूछते थे हम बच्चों से। लेकिन अब की बार जो बात है वो बिल्कुल हम वो वाली बात नहीं है, देयर इज नो चॉइस लेफ्ट, इट इज मैंडेटरी एंड नॉट ओनली फॉर अस, फॉर ऑल द स्कूल्स। जिन्होंने पिछले साल तक नहीं किया था उनको प्रॉब्लम जरूर लग रही होगी, बट वी हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट। हम लास्ट ईयर से ही सारी किताबें पढ़ चुके थे और इस सेशन में हमने लगाना ही था। मैं बस ये सोचती थी कि 6, 7, 8 में किताब लगाइए, बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में इन किताबों को पढ़ लें, अगली बार इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट आई डोंट थिंक किसी बच्चों ने या पेरेंट्स ने उनको पढ़ा होगा। जस्ट अ कॉस्ट ऑफ ₹65 वन बुक। कृति एंड बांसुरी दो किताबें थी, और खेल यात्रा और खेल योगा। पर मुझे पता नहीं, अगर इन्होंने पढ़ी है तो थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। कृति इज ऑल अबाउट आर्ट्स, यानी कि ड्राइंग, डांस, ड्रामा एंड सिंगिंग। इनका क्या इतिहास है भारत का, ये इंडियन इंडियन जो डाइवर्सिटी है उसमें हमने जो भी चीजें हमारी आर्ट फॉर्म्स है उसको हम, उसके लिटरेचर के बारे में हम कितना जानते हैं, वी वर नॉट अवेयर ऑफ। इनफैक्ट मैं अपनी बताऊं कि मुझे भी सारी चीजें नहीं आती थी, लेकिन जब ये किताबें आई तो आई वॉज रियली हैप्पी कि एरिया ऑफ फोकस कितना कितना अच्छा है। और इसका 10th तक जाते जाते बोर्ड एग्जाम होगा, तो इसलिए क्लास 6 के बच्चे इसको सच में सीरियसली पढ़ें, और प्यार से पढ़ें, सम्मान से पढ़ें, क्योंकि ये हमारे ही पास है और लोगों के पास नहीं है। अब आपका जो एग्जाम पैटर्न है बोर्ड का, इसका स्कूल में इस साल कैसे रहने वाला है? PT1 term 1, PT2 term 2. Parents are really so much comfortable about it. जबकि NCF ऐसी बोलता है कि आपको धीरे धीरे ये सारी चीजें खत्म करनी है, बट बिकॉज अदर स्कूल्स आर नॉट प्रैक्टिसिंग, तो हम ऑड वन आउट हो जाते हैं कि ये आप ही क्यों करते हो, और तो स्कूल में सितंबर में एग्जाम चल रहा है, बाकी स्कूल्स में तो ये सब नहीं चल रहा है। बिकॉज आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू लर्निंग और नॉट, एंड दे आर विलिंग टू चेंज, ब्रिंग द चेंज इन द नीडेड चेंज और नॉट। जब आप देखिए 9th में क्या हो रहा है, PT1 वो मैंडेटरी हर स्कूल में, PT1, PT2, PT3, उनके बेस्ट का एवरेज निकालते, टू बेस्ट जो है उनका टू का एवरेज निकाल के 5 नंबर वो सब वो कर रहे हैं, और लास्ट में जाके एक टर्म एग्जाम होता है। बट अगर कोई ऐसा बोलता है तो ठीक है, फिर हम वापस चले जाते हैं, देखते हैं कितने वापस जा पाते हैं। तो PT1 टर्म 1, PT2 टर्म 2, आई एम हैप्पी, हमारे टीचर्स भी हैप्पी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब ये नोट है कि हिंदी और इंग्लिश का जो लिटरेचर एंड लैंग्वेज के पेपर्स आपके अलग अलग होते थे वो नहीं होंगे, सिंगल पेपर होगा, टाइम आपका बढ़ेगा। बाकी टेस्ट पेपर्स 2020 के हैं तो ये 40 का होगा टुगेदर, आपको ड्यूरेशन ज्यादा हो जाएगा। डेट शीट आपको मिल चुकी है PT1 की, एंड द सिलेबस हैज ऑलरेडी बीन अपलोडेड ऑन द ERP, एंड anything regarding this if you want to know, you're most welcome tomorrow for the PTM। एंड जो वेटेज है वही 20 + 80 करके 100 मार्क्स पे जाता है, एंड 20 मार्क्स इंटरनल मार्क्स जो होते हैं, दैट इज 5 मार्क्स ऑफ पेन पेपर, 5 मार्क्स ऑफ पोर्टफोलियो, जिसमें आपकी नोटबुक भी आएगी, जिसमें आपके सारे सर्टिफिकेट्स आएंगे, जिसमें आपके सारा बेस्ट वर्क आएगा, सारे वो टेस्ट पेपर्स जो आपने बिना चीटिंग के अच्छा किया है। आप गड़बड़ पेपर भी रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये मेरे कम मार्क्स आए थे, उसको जरूर रखिए, आप अपने गंदे काम को जरूर रखिए, जिससे कि आपके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट रहे, आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम हियर एंड आई वांट टू रीच हियर विद इम्प्रूवमेंट्स, लर्निंग फ्रॉम माय मिस्टेक्स। ये तो एक जर्नी होती है, आपने गलती करी थी, उस गलती में आपको अपने अंदर चेंज लाना है, तो दूसरा बच्चा थोड़ी चेंज लाएगा। आप अपने बच्चों को बोलते हैं कि देखो उनके नंबर ज्यादा है, उन्होंने डांस में पार्टिसिपेट कर लिया, डोंट डू एनी कंपैरिजन विद एनी चाइल्ड, बट द ओनली थिंग इज कि आपके बच्चे के अंदर वैल्यूज हैं, लाइफ स्किल्स हैं, यू शुड बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी बहुत प्रॉब्लम रहती है, सर हॉलीडे होमवर्क में जब हम सब्जेक्ट एनरिचमेंट रिलेटेड कोई काम दे देते हैं तो पेरेंट्स का रहता है कि छुट्टियों में काम क्यों दिया जा रहा है, हमें करना पड़ता है, तो आप कर क्यों रहे हैं, आपको तो नहीं करना चाहिए वो काम, वो तो बच्चे का काम है। और अभी आगे जाके जब वो इंजीनियरिंग में जाएंगे, मेडिकल में जाएंगे, उनको डायसेक्शंस खुद करने हैं, उनको अपने प्रोजेक्ट्स खुद करने हैं, उनको प्रेजेंट खुद करने हैं, तो हॉलीडे होमवर्क कौन करना चाहिए, किसको करना चाहिए? यू शुड बी अ पार्ट ऑफ दैट। अगर हम उसको कहते हैं कि अगर बच्चा फैमिली में है और फैमिली उसके साथ एंगेज होती है, बट इफ यू माइंड, देन आई रियली हैव अ क्वेश्चन मार्क ऑन द थॉट प्रोसेस कि हाउ मच डिमांडिंग यू वी आर। बच्चों के लिए होना चाहिए, जो काम है उनके लिए होना चाहिए, बट विल सी टू इट।
कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, कुछ कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बच्चे मजे करें। दैट्स ओके। मल्टीपल असेसमेंट होगा, मैनी टाइम्स होगा, उसमें प्रेजेंटेशन भी बनवा सकते हैं। तो इस बात पे ये नहीं होना चाहिए कि हमारे बच्चे फोन लेके बैठे हैं, आगे जाके बच्चे कैसे करने वाले हैं। तो लिमिटेड टास्क है, आप उनके पास रहिए एंड दे आर लर्निंग। ये पीपीटी भी टीचर्स ने बनाई है और मैं उनको बस प्रेजेंट कर रही हूँ। सो ये जो आप हम सारा काम कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रिपोर्ट कार्ड ऑफ ए चाइल्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। एंड प्रोग्रेस इज समथिंग कि जो बच्चे कौशल बोध में, कुछ बच्चों के पौधे चले ही नहीं, जब उन्होंने माइक्रो ग्रीन्स लगाए, मेथी लगाया, धनिया लगाया, जो जो उन्होंने पौधे बेचारों ने सीड्स लगाए थे अपने कोकोपीट में, उनके पौधे ही नहीं चले। दे वर सो फीलिंग सो बैड, और वो अपने टीचर से कह रहे थे, मैम हमारे बीजों को क्या हो गया, हमारे पौधे क्यों नहीं चले। एंड दे वर रिफ्लेक्टिंग ऑन इट, द टीचर वाज टेलिंग, देखो बेटा क्या रहा होगा, आपने ज्यादा पानी तो नहीं लगा दिया था, आपने डिब्बा बंद तो नहीं कर दिया था, उसमें ऐसा तो नहीं कि ऑक्सीजन नहीं मिली हो उनको, ऐसा तो नहीं है उनको उनको सनलाइट नहीं मिली हो। अब आप देखिए बच्चा अपने आप सीख रहा कि उसके तो इतने ग्रीन हो गए, इतने सारे पौधे, पूरा डब्बा भर गया, और मेरे पौधों को क्या हुआ। आप भी अपने पौधों को देखिए, हम हमारे लिए सारे पौधे हैं, लेकिन अगर कोई रिफ्लेक्शन बच्चे के पार्ट पे है और टीचर कहते देखो बेटा आप देखो आपका क्यों नहीं हुआ, तो आप भी अपने बच्चों पे काम करिए। पीटीएम में आप आते हैं अपने लिए आइए, डोंट सिट टुगेदर टू ब्रिंग वन कॉमन कंप्लेन ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी। This is something where you are teaching your children how you should behave in the society, not realizing what is socio-emotional learning all about. तो ये होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहिए तो आपको ये सारा काम तो आपको करना ही पड़ेगा। सबसे पहले ये 5 कोर कॉम्पिटेंसीज देख लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सबके लिए, वो मेरे लिए भी हैं, आपके लिए भी हैं। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, social awareness, relationship building skill, and then problem solving. And that is responsible decision making. रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर मैं कोई डिसीजन लेती हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपने मुझे कोई टास्क दिया, बट मैं उस काम को अगर करने लगती हूँ एंड यू पुट द हिंड्रेंस इन बिटवीन, and then many of the people come together that the process is wrong, of course I'm done, I'm away, that's okay। तो उन चीजों में देखिए, अगर हम आपसे कहते हैं कि आपने ये काम नहीं किया, तो ये तरीका इस तरीके से नहीं होता। जो कोई चेंजेस आए हैं, उन चेंजेस को चेंज अगर देखना है तो कैसे कैसे एक स्लो प्रोसेस होता है। जैसे सीड का जर्मिनेट करने का एक स्लो प्रोसेस है, ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, डिसीजन मेकिंग का एक टाइम होता है। बट यही बच्चों को सिखाना होता है, इसमें कोई जल्दीबाजी होनी नहीं चाहिए। अब इतना ही काफी नहीं है, एक जो इम्पोर्टेंट चीज है कि हम प्रोसेस और मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। बच्चे सिर्फ लिख रहे हैं, लिखने का मैकेनिज्म है, याद कर रहे हैं, याद करने का मैकेनिज्म है, याद करके फिर से लिख रहे हैं, टेस्ट में मैकेनिज्म है, उसके बाद मार्क्स मिल गए, मैकेनिज्म है। कब तक याद रहा, कॉन्सेप्ट तो नहीं बने। जब रियल में प्रॉब्लम आई तब तो हम उसको अप्लाई नहीं कर पाए। दैट मीन्स नॉलेज तो आई, स्किल नहीं आया और एटीट्यूड नहीं आया, तो परफॉर्मेंस हो गई खत्म। बच्चों को अपने आप अपने बूते पे चलना आना ही चाहिए, उसको बोलते हैं, क्योंकि उनको रियल एप्लीकेशन सिखानी है। दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। पेपर डिफिकल्ट होने वाले हैं, 9th में पूरा सिनारियो चेंज हो गया है। 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, जो रट के याद करने वाली चीजें वो बहुत कम हो गई है। अभी वो 50 में है, 30+20 है, ये खत्म हो जाएगा। 80% कॉम्पिटेंसी होने वाला है आपके बच्चों के लिए आगे चलकर। तो आर यू बिलीविंग इन दिस दैट द क्वेश्चन पेपर जो कॉपी में कराया है सारा का सारा वही आए, जो बुक में था वही आए। आपने रिवीजन ही नहीं कराया तो क्यों करवा दिया, आपने क्यों दे दिया। देयर इज नथिंग इन योर हैंड। जिस दिन बच्चे ने जो पढ़ा है उस दिन वो खुद समझ ले उस चीज को, और उसको वो पढ़ने के लिए जिम्मेदारी ले, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। बच्चा भी कभी स्ट्रेस में नहीं होगा। बट आफ्टर टीचिंग होम, if the children are not really able to give time to the studies and not managing their bag also, पूरा बैग ही लेके आ जाते हैं, पूरी पूरी सारी नोटबुक्स ले आते हैं विदाउट अरेंजिंग द बैग अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल, देन दिस इज अ प्रॉब्लम। तो ईआरपी का मैकेनिज्म, ईआरपी में कोई दिक्कत है, ट्रांसपोर्ट में अगर कोई इशू है, या फिर आपको कोई भी इस तरीके का रिगार्डिंग कोई भी कंसर्न है, मेक श्योर या तो आप डायरी में लिख के भेजिए ताकि बच्चा यहाँ पर आपके नाम पे रिपोर्ट कर दे। द फॉर्म, द स्कूल फॉर्म इज अवेलेबल एट रिसेप्शन, आप उसको भरिए, राजप्रीत मैम को देकर जाइए, द एंड गिव अस टाइम
24 to 48 to 72 hours, so that we do interventions, so that we can find out what all is required, what is the real cause, what is the root cause, and what is to be done, what should be the action plan, what is the feedback, or what is the solution. चेयरमैन हमारे मैनेजमेंट से अमित काम्बोज सर ने की तरफ से एक मैसेज है कि इतना टाइम आप हमें दीजिए और मैकेनिज्म को पूरा होने दीजिए। बहुत जल्दी यहाँ से वहाँ से वहाँ करने से अगर गलत सॉल्यूशन निकल आया और लॉन्ग रन में जाके बच्चों को कोई नुकसान हुआ, तो वो नुकसान सिर्फ आपका नहीं है, बच्चे का नहीं है, सबका होता है, ट्रस्ट का नुकसान। सो वी बिलीव दैट यू विल फॉलो द प्रोसेस कि आप राजप्रीत मैम के पास थोड़ा फिर वेट करेंगे एंड यू विल नॉट बी इन हश हश। आज बच्चों की मॉक ड्रिल, इनकी इवैक्यूएशन ड्रिल्स भी होंगी, हेल्थ चेकअप भी होगा और अभी इन्वेस्टर्स सेरेमनी होनी है मंडे को ओरिएंटेशन के बाद। तो आप आज इमेजिन करिए कि इस बार हम रेट, लास्ट ईयर वी सिलेक्टेड 2 students for deputy head boy and head girl from grade 8. Now they are into 9 and they have no remorse, they have no complaints. पेरेंट्स को हमने समझाया कि 6 to 8 एक ब्लॉक है, एक स्टेज है, उसमें हाईएस्ट क्लास कौन सी हुई 8। तो 8 का बच्चा अब डिप्टी हेड बॉय हेड गर्ल बना। एक बार वो बन गया तो जो उसके अंदर वो जो जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स डेवलप हुए हैं, जिसको टैलेंट हुआ है, वो तो उसके अंदर आ ही गया ना। वो चाहे वो 9th में बने या ना बने, 10th में भी नहीं बनेगा, 11th में भी नहीं बनेगा। वो अगर 12th तक जाते जाते उस चीज को नर्चर करता है, तो उसको फिर से दोबारा मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए। जितने भी मॉनिटर्स हैं, हम चाहते हैं कि अपने अपने काम को मॉनिटर करना सीखें। देयर इज नो हार्म इन दैट। अगर बच्चों की क्लास गंदी है और वो क्लीनलीनेस करना चाहते हैं, व्हाट इज द बिग डील, उनको तो करना ही है कौशल बोध में। तो इसमें कोई फर्क नहीं होनी चाहिए कि हमारे बच्चों से टेबल क्यों साफ करवाई गई क्योंकि वो गंदी हुई थी। घर में तो बच्चे तभी करेंगे जब स्कूल में करेंगे, और हम उनको बताते हैं कि घर जाके भी आपको मम्मी पापा की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि डिग्निटी ऑफ लेबर तो आपको आना चाहिए। मम्मी ही हमेशा कुक क्यों करें? अगर आपके आज सर्वेंट नहीं आई तो आप भी तो मम्मी की हेल्प कर सकते हो, आप भी तो क्लीनिंग कर सकते हो। व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? Life skills are important, values are important, and so is important is conservation of water. लास्ट ईयर भी हमने बच्चों को कहा था, लेकिन वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया बच्चों ने। मुझे लगता है कि वो प्रोजेक्ट इस बार बच्चे कंप्लीट करेंगे। ऑलरेडी अप्रैल 16 टू 30 तक जल शक्ति मंत्रालय वालों ने जल पखवाड़ा कर लिया है। हमने जो एक्टिविटीज कराई हैं उनको हमने रिपोर्ट कर दिया है, बट आपको भी घर पे ध्यान देना पड़ेगा कि हम पानी वेस्ट तो नहीं कर रहे, सस्टेनेबिलिटी, ओवर कंजम्पशन तो नहीं कर रहे हैं, ओवर वेस्टेज तो नहीं कर रहे हैं। और घर में जब बच्चे देखेंगे तो डेफिनेटली वो स्कूल में समझ पाते हैं कि घर पे भी हमारे मम्मी पापा हमें बोलते हैं, स्कूल में भी वही बोल रहे हैं। अगर हम इधर कर रहे हैं और आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, तब बच्चों की लर्निंग होती है, तब बच्चों की लर्निंग होती है। मेजॉरिटी पेरेंट्स इसमें बिलीव करते हैं कि अपने बच्चों को ट्यूशन लगा रखी है। वाई ट्यूशन? वाई नॉट यू? एंड वाई नॉट चाइल्ड हिमसेल्फ और हरसेल्फ? कितना इंप्रूवमेंट आ गया ट्यूशन लगा के? तो फिर हटा दीजिए और बच्चों को खुद पढ़ने दीजिए, कम मार्क्स आने दीजिए, मिस्टेक्स हुई है उससे सीखने दीजिए और इम्प्रूव करने दीजिए। बहुत समय है। 9th में बहुत सारा काम आने वाला है। 9th में एडवांस लेवल साइंस, एडवांस लेवल मैथमेटिक्स, जिसका कि पेपर ही अलग होना है, 25 मार्क्स का, ऑल हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। मेरी रिक्वेस्ट है ग्रेड 8 के पेरेंट्स से, अगर जो कोई यहाँ पर मुझे सुनेंगे, जितने भी क्योंकि ये लाइव है, बाद में भी आप देख पाएंगे, ग्रेड 8 के पेरेंट्स सीरियसली इस चीज को समझ लें। एक तो उनको अपना एग्जाम भरना है सफल का, 5 वाले बच्चों को जब 6 में आ जाएंगे अगले साल, इस बार फिर एग्जाम होना है, एग्जाम भरा जाएगा और फिर सफल का एग्जाम आपको देना है, दैट इज गोइंग टू बी ऑनलाइन एग्जाम। तो ऑनलाइन सिक्योरिटी, डिजिटल सेफ्टी, आप बिल्कुल, आप, मैं इतना भी सिर हिला रही हूँ बात करने के लिए, यू विल नॉट बी अलाउड टू, यू हैव टू सिट प्रॉपर्ली। कैमरा में आपको आंख भी इधर से उधर नहीं करनी होती है। दिस इज वी ओनली वी कैन टीच इन द स्कूल। तो अगर कुछ बच्चों का था, पिछली बार भी उन्होंने किया था, ये नहीं मान रहे थे कहना, because they are never into listening to others. So listening patiently is really important. ये एक स्किल है, ये एक क्वालिटी में डेवलप हो जाती है, हैबिट बन जाती है। इग्नोर करना अगर एक हैबिट बन जाती है, इस तरह से सुनना, एक अच्छी तरह से सुन के बात को समझ के तब उस काम को करना, वो भी एक हैबिट बनती है।
आपके सभी के बच्चे 6, 7, 8 में जो हैं, they are passing through adolescent age, they are adolescents, they are passing through a temporary phase where they are having a lot of hormonal changes in the body, and they are not adjusting themselves. Hormones take some time, and early menstruation is again a thing in the life. So giving a positive feedback about menstruation is really important. All the mothers who are having daughters, and if they are having some time, so don't tell them this is an abnormal thing. This is very normal, and this is very healthy. It's very pious also. There is no harm going to school. Do send them. We take care of our children. We take up all the students. Let them tell that school is that you belong to that school, and we are here to take care of all the needs of the children. We are believing in student centric approach. Thank you very much. I'm inviting you for tomorrow's PTM. This is parent teacher meeting. You have to meet not only to the class teacher but to all the subject teachers. जितने भी सब्जेक्ट के टीचर्स हैं उन सबसे आपको मिलना है. आप 5-7 मिनट टाइम हर टीचर के साथ बिताना. उसके बाद एग्जाम शुरू होने वाले हैं. सिलेबस है, करेक्शन है, परफॉर्मेंस है, प्रोग्रेस है. डिस्कस ईच सिंगल थिंग विद ऑल द टीचर्स. थैंक यू एवरीवन. जय हिंद.